after the lecture of two of my worthy teachers, Professor Arif Siddiqui साहब और Dr. Imran, दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है from day one of my medical college. I will try to be short, लेकिन उससे पहले मैं ऑर्गेनाइजर्स को, स्पेशली चीमा साहब को, नदीम साहब को और राना साहब, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ फॉर अरेंजिंग सच अ मेगा इवेंट. मैं कुछ बात वो करूँगा कि जो हम सब ने एक शुरू कर दिया है कि एनी पेशेंट हु गोज़ टू गुलाब देवी, अब चेंज हो गया है, अब चेंज हो गया क्योंकि अब मेडिकल कॉलेज बन गया है, तो उसको एंटी ट्यूबरकुलस मिल जाती थी. पीआईसी गया तो उसको डिस्प्रीन मिल जाती थी. एंड एनी पेशेंट वो किसी भी अस्पताल की इमरजेंसी में जाता है तो बिला शिरकत गैरे उसको सेफ्ट्राइजोन का एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है. एंड दैट इज द एंटीबायोटिक एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू डायरिया. सो एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया जो हमने सेल्फ इंड्यूस कर दिया कि पेशेंट आया किसी और मकसद से था और हमने उसको कुछ और दे दिया. एनीवे, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, पासिंग लूज वाटरी स्टूल 3 or more, ये डायरिया की डेफिनेशन है कि इफ यू पास मोर देन 3 स्टूल, जैसे सर ने कॉन्स्टिपेशन की बताई थी, तो एग्जैक्टली उसके अपोजिट है अ डे. सो बच्चों में इवन अ सिंगल लार्ज स्टूल में बी टेकन इन द हेडिंग ऑफ डायरिया. अबाउट 1 in 5 people who take antibiotics develop antibiotic associated diarrhea. May be acute if duration is less than 2 weeks and chronic if duration is more than 2 weeks. Overall risk of this antibiotic associated diarrhea is 5 to 25% with different antibiotics. One of them is pseudomembranous colitis associated with C. difficile, occur in 10 to 20% of all cases of this diarrhea. And you can see that different antibiotic has been used, and with clindamycin it may be up to 30%, with lincomycin up to 25%, with स्फिक्सिन और स्फेलोस्पोरिन जो हम कॉमनली यूज करते हैं, था मैंने पूरा तो नहीं सुना, जो इमरजेंसी में. सो विद you can see with amoxicillin or penicillin it is up to 10%, with macrolide depending upon there are different generation of macrolides, like with azithromycin it is less, with clarithromycin it is quite high, and similarly with fluoroquinolone incidence is on lower side. These are different studies again showing that risk of antibiotic associated diarrhea doubled if antibiotics were given for over 3 days. If you give any antibiotic for more than 3 days, it may induce diarrhea. So different studies, so I am not going into the details of these studies. As you can see, 5 to 25% depending upon causative antibiotic. With erythromycin, mortellin receptor agonist है, with clavulanic acid it stimulates bowel motility, and all these antibiotic they modify intestinal flora. अब जब फ्लोरा, गट फ्लोरा जो है उसकी अल्ट्रेशन होती है, that lead to decreased carbohydrate metabolism and short chain fatty acids, and ultimately जब उनकी accumulation होती है तो it lead to osmotic diarrhea. Similarly decreased जो primary biliary acids हैं उनसे related जब metabolism होता है तो that lead to secretory diarrhea. This slide is very important कि जो different antibiotics है उनका what are the mechanism of action that lead to alter in gut microbiota, especially one is enterotoxigenic Staph aureus. These induce enterotoxin A causing diarrhea along with leukotoxin due to their interaction with
intestinal epithelial cells and epithelial lymphocyte that may act as a super antigen. For enterotoxigenic Clostridium, it induces again enterotoxin, alter gut permeability by forming 90 kDa complex, and that oligomerize into cellular damage via cytotoxic activity, alter tight junction structure, and function by interacting with क्लोटिन्स एंड अक्लोडेंट्स जो कि ये मालिक्यूल्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, उनका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से दिस लीड टू डायरिया. देन साइटोटॉक्सिक क्लेब्सियला, ये क्या करता है? अगेन इट प्रोड्यूस साइटोटॉक्सिन्स दैट causes epithelial cell death and necrosis, hemorrhagic fluid accumulation in the colon. When again, जब हम another organism that is Candida, fungal infections, तो direct effect तो इतना नहीं मिलता, but whenever we use antibiotics, तो it suppress our immune system, और ultimately कैंडिडा का अगर मोर देन 10^5 उसकी है वैल्यू, तो इट इज़ कैंडिडा इंड्यूस्ड डायरिया. और अगेन ये भी वही करता है कि कैंडिडा की ओवर ग्रोथ हो जाती है, दैट रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज लैक्टेज एक्टिविटी काजिंग लैक्टोज इंटॉलरेंस, इंक्रीज सक्रीशन ऑफ वाटर, सोडियम एंड पोटाशियम इनटू द स्मॉल बाउल वाया एंडोटॉक्सिन लाइक सब्सटेंस, secretion of beta lactamases. So ये different जो हमारे बॉडी में पैरासाइट्स हैं या बैक्टीरिया है या फंगल हैं, they activate when we use antibiotic for more than 3 days. So symptom वो आप सबको पता है कि डायरिया होगा, मे बी सीवियर, और जब सीवियर डायरिया होगा तो डिहाइड्रेशन होगी. It may be associated with abdominal pain, fever and loss of appetite. अब again इसको severity को हम different grade में divide कर सकते हैं, mild to moderate, स्टूल की frequency के लिहाज से भी, and when with other parameters like mild to moderate where leukocyte count less than 15,000, creatinine less than 1.5 times pre-morbid level, इनके बीमारी से पहले. severe में क्या होगा? ल्यूकोसाइट काउंट मोर देन 15,000, क्रेटिनिन जो है मोर देन 1.5 टाइम. यहाँ पे एक चीज मैं बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि एनी पेशेंट विद एनी ऑफ डायरिया, इफ यू सी कि उस पेशेंट की क्रेटिनिन बढ़ गई है, तो प्लीज गो फॉर एबीजीज, एंड दैट पेशेंट नीड nephrologist help as well. And sometimes this is the condition where like आप डीके डायबिटीज तो आप मैनेज करते हैं कि उस पर आप देखते हैं कि पीएच जब तक 7 से कम ना हो आप बाइकार्ब नहीं देते, बट दिस इज द कंडीशन वेयर इफ यू गिव बाइकार्ब तो आप उसको AKI से भी बचा सकेंगे, एंड मैनी अ टाइम दिस विल बी लाइफ सेविंग. सो अगर किसी पेशेंट को डायरिया ड्यू टू एनी रीजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली कि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया है, ड्यू टू एनी रीजन अगर क्रेटिनिन बढ़ती है, प्लीज गो फॉर एबीजीज. सीवियर कॉम्प्लिकेटेड में हाइपोटेंशन होगी, शॉक होगा, सिम्टम ऑफ इलियस और मेगाकोलन. देयर आर मेनी रिस्क फैक्टर फॉर एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, स्पेशली ऑफ सी डिफ. उसमें क्या है? एंटीबायोटिक की तो हमने बात कर ली, देन कीमोथेरेपी भी है. सिमिलरली देयर आर मेनी केमिकल्स जो हमारी खुराक के ऊपर डाले जाते हैं, जो हमारे फूड के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं, दे एक्ट एज जीनोबायोटिक्स. फिर होस्ट फैक्टर लाइक एज, एक्सट्रीम ऑफ एज, स्पेशली फीमेल हैविंग कोमॉर्बिड इलनेसेस एंड दोज हैविंग रिड्यूस्ड इम्यून रिस्पॉन्स ड्यू टू एनी रीजन, और prior history of antibiotic associated diarrhea. Then those with comorbid illnesses having pathogen exposure like prolonged hospitalization due to any reason, infected roommate है, इनके घर में किसी को है, और proper unhygienic
एटमॉस्फेयर है तो अगेन इट कैन इंड्यूस दिस सॉर्ट ऑफ डायरिया। और अगेन प्रोसीजर्स लाइक किसी की सर्जरी हुई है, एनजी ट्यूब है, एनीमास है, डायग्नोस्टिक कोलोनोस्कोपी हुई है, और वहाँ पे भी अगर हमने प्रॉपर स्टरलाइजेशन को मद्देनज़र नहीं रखा तो वी मे एंड अप विद दिस सॉर्ट ऑफ डायरिया। सो हमने फिर डायग्नोसिस उसकी कैसे करनी? वन इज हिस्ट्री, एज माई वर्दी टीचर सेड इनिशियली कि प्लीज हमारी आधी से ज़्यादा डायग्नोसिस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ आवर हिस्ट्री, जिसमें हम सब लैकिंग है ड्यू टू आवर बिजी स्केड्यूल। क्लिनिक में 10 मरीज आगे बैठे हैं, आप 3 मिनट लगते हो, डॉक्टर साहब खैर तो है, कोई घर दियां गल्लां करन लग पे जी। सो वो जो है वो बातें, प्लीज टेक प्रॉपर हिस्ट्री एंड हिस्ट्री विल लीड यू डायग्नोसिस मोस्ट ऑफ द टाइम। हिस्ट्री ऑफ रिसेंट एंटीबायोटिक विद इन 2 months ऑफ टाइम और रिसेंट हॉस्पिटलाइजेशन। अगेन जैसे हमने कहा कि डिफाइंड डायरिया की डेफिनेशन इफ पासिंग more than 3 stool a day. Exclude other diarrhea causes like medication resulting in diarrhea. Patient is already on lactulose, और अभी हम इन दवाइयों का नाम ले रहे हैं तुम, या patient is having inflammatory bowel disease, food intolerance है, celiac disease है, और many other. So वो हमने exclude करनी है। Exclude non-antibiotic enteric pathogens like salmonella है, shigella है, vibrio cholera है, yersinia है। If diarrhea persist और serious symptom, तो फिर हमने उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे भी जाना है, और उससे पहले हमें पेशेंट के कुछ टेस्ट हैं जिसमें आपने CBC करानी है, LFT करानी है, RFT कराना है, along with C. diff सेल साइटोटॉक्सिन B assay, जो कि हम बाय एलाइजा और PCR टेक्निक से कर सकते हैं। सिमिलरली स्टैफ के लिए आप करेंगे एंड क्लैब्सिला के लिए। सो ये आपने टेस्ट पेशेंट के करवाने हैं। अब याद रहे कि फॉर C. diff गोल्ड स्टैंडर्ड इज द साइटोटॉक्सिन assay, डिटेक्ट टॉक्सिन बट इज इनकन्वीनियंट फॉर मैनी लैब्स, इट टेक्स 1 to 2 days। अब एक चीज़ यहाँ पे हमारे यहाँ ये आई हैव नॉट सीन इन एनी ऑफ द हॉस्पिटल, लेकिन यूरोप में एक कॉमन प्रैक्टिस थी कि वार्ड में अगर किसी भी पेशेंट को, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है एंड पेशेंट इज ऑन एंटीबायोटिक, तो जैसे ही डायरिया होता था तो स्टाफ नर्स इमीडिएटली उस पेशेंट को सेग्रीगेट कर देती। इनके जो वार्ड के साथ 2-3 रूम बनाए होते थे, पेशेंट उस रूम में चला जाता था, और साथ ही उसके लिए साइटोटॉक्सिन वगैरह भेज दिया जाता था, और एंटीबायोटिक जो थी वो स्टॉप कर दी जाती। हमारे यहाँ किसी भी हॉस्पिटल में ये प्रैक्टिस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब हाउ टू ट्रीट? सो ट्रीटमेंट में बेसिक, एज हम सब ने कहा कि उसको एनी पेशेंट हैविंग हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक यूज विद इन लास्ट 3 days, सो पहला काम तो फिर क्या करेंगे, हम उस एंटीबायोटिक को स्टॉप। अब जैसे ही स्टॉप करेंगे मैनी ऑफ द पेशेंट विल इंप्रूव। अगर पेशेंट नहीं इंप्रूव करता तो स्टार्ट मेट्रोनिडाजोल। अगर अगेन इफ यू डोंट गेट एनी रिस्पॉन्स विद मेट्रोनिडाजोल, add vancomycin or give only vancomycin as such। अब इसमें यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि कॉमन प्रैक्टिस ये है कि हम as vancomycin is quite costly, so metronidazole many a time, and for those patient जिनको persistent है या more than 1 month तक जा रहा है, तो many a time आपको longer duration के लिए metronidazole देनी पड़ेगी। एंड फॉर दोज अगर सीवियर है तो हॉस्पिटलाइजेशन। सो ये एक स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी डायग्नोसिस होगी है कि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया है, नो नोन इटियोलॉजी, तो स्टॉप एंटीबायोटिक, स्विच टू लोअर रिस्क है। सो आपने अगर एंटीबायोटिक ज़रूरी है तो ऐसी एंटीबायोटिक से स्टार्ट कर दें जो लोअर रिस्क हो। C. diff है, टॉक्सिन और कल्चर पॉजिटिव है,
उसके लिए फिर आपने क्या करना है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, नो ट्रीटमेंट, बट इफ प्राइमरी एपिसोड ऑफ सी डिफ एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया है तो एक तो आपने एंटीबायोटिक स्टॉप करनी है, ट्रीट विद ओरल मेट्रोनिडाजोल। अब हमारे यहाँ ये 400 मिलीग्राम थ्राइस डेली फॉर 10 to 15 days, or treat with oral vancomycin 125 to 250 milligram QID for 10 days। Initial resolution of symptom है तो ठीक है, इतना ही काफ़ी है, बट इफ देर इज रिकरेंस कि जैसे ही ये आपने स्टॉप किया दोबारा डायरिया शुरू हो जाता है तो देन रीट्रीट विद मेट्रोनिडाजोल एंड वैंकोमाइसिन, एंड उसके साथ साथ आपने रिपीट सी डिफसाइल रिकरेंस के लिए आपने पल्स और टिपरिंग कोर्स ऑफ वैंकोमाइसिन करना है। एडजुएंट, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिकरेंस हो रही है, सो एडजुएंट ट्रीटमेंट विद प्रोबायोटिक और फीकर रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसकी सर ने, इमरान साहब ने बात की थी। अगेन इफ नो रिस्पॉन्स देन देर आर इन्वेस्टिगेशनल थेरेपीज हैं लाइक IV इम्यूनोग्लोबुलिन, दो ट्रायल्स कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं है। सिमिलरली टॉक्सिन बाइंडिंग पॉलीमर्स है, ये टोलिवामर के नाम से एक नई एंटीबायोटिक है लेकिन फेज 3 ट्रायल में है अभी। फॉर दोज परसिस्टेंट सिम्टम्स है या सीरियस कोलाइटिस जिनको हो जाता है आपको सर्जिकल हेल्प चाहिए एंड देयर यू मे नीड कोलेक्टमी। लास्ट 2 स्लाइड्स मैं इस पे, सो प्रोबायोटिक का क्या रोल है? सो प्रोबायोटिक हैज बीन यूज्ड और उनमें ये क्या करते हैं कि दे बूस्ट आवर इम्यूनिटी, इंक्रीजिंग गट barrier integrity, producing antimicrobial substances, modulating the gut microbes, और उसका advantage ये क्या है कि these are the indications, especially it is being used in many of the indications and we are getting very good result. Many of the trials and meta-analysis showed that they are beneficial even up to 51% of the patient, and इसमें लैक्टोबैसिलस है और दूसरी भी जितनी भी हैं हमारे पास। प्रोबायोटिक आर इफेक्टिव फॉर प्रिवेंटिंग, एक ये है कि अगर आप इफ़ यू आर थिंकिंग कि इस पेशेंट को एंटीबायोटिक देनी ज़रूरी है एंड पेशेंट इज ऑलरेडी हैविंग हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, तो आप कॉन्कॉमिटेंट आप प्रोबायोटिक दे सकते हैं। सो उसमें भी अगेन को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोबायोटिक विद एंटीबायोटिक रिड्यूस द रिस्क ऑफ दिस डायरिया बाय 37%। सो लास्ट स्लाइड कि कंट्रोल फिर इसका क्या है, जैसे मैंने पहले कहा कि प्लीज वी नीड टू यूज एंटीबायोटिक, बट इफ यू आर यूजिंग एंटीबायोटिक use when it is extremely necessary or use of probiotic. Thank you very much.